Following summary of chapter 10 is given by Bhaktivinoda Thakur in his Amrit Prabha Bhashya. Before the Ratha Yatra ceremony, all the devotees from Bengal started for Jagannath Puri as well as Raghav Pandit brought with him various kinds of food for Sri Chaitanya Mahaprabhu. The food had been cooked by his sister Damayanti, who then packed it in the bags of the jhali. Jhali means bag. Thus the stock of food was generally known as Raghavir Jhali. Raghavir Jhali means bag of Raghav. Raghav Pandit and his sister Damayanti. They used to bring many kinds of prasad preparation for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Mukaradhaj and inhabitants of Panihati who accompanied Raghav Pandit was the secretary in the charge of accounting of the Raghav Jhali. वंदे श्री कृष्ण चैतन्यं भक्तानुग्रह कातरं येन केनापि संतुष्टं भक्तो दत्तेन श्रद्धया। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। वर्षांतरे स भक्त प्रभुरे देखिते परमानंद सभी नीलाचले जाइते। अद्वैताचार्य गोसाई सर्वर अग्रगण्य आचार्य रत्न आचार्य जी श्रीवास आदि धन्य। यद्यपि प्रभु राज्ञा गौड़े रहीते तथापि नित्यानंद प्रेम चलिला देखिते प्रेमे चलिला देखिते। अनुरागे लक्षणे विधि नहीं माने तार आज्ञा मांगे तार संगेर कारणे। रासे जे घर घर जाइते गोपीगणे आज्ञा दिला ताहा आज्ञा मांगे तार संगे से रहिला। आज्ञा पालने कृष्ण रे जइছে परितोष प्रेमे आज्ञा मांगते হয় कोटि सुपोष। In this chapter, Krishnadas Kaviraj Goswami very nicely and vividly describes how Lord Chaitanya Mahaprabhu very pleased with Raghav Pandit. Raghav Pandit and his sister Damayanti, they used to bring many kinds of preparation for Lord Chaitanya Mahaprabhu. वर्षांते सब भक्त प्रभुरे देखिते परमा आनंदे सभी नीलाचले जाइते। The next year all the devotees were very pleased to go to Jagannath Puri Nilachal to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Acharya led the party from Bengal. He was followed by Acharya Ratna, Acharya Nadi, Srivas Thakur and other glorious devotees. यद्यपि प्रभु राज्ञा गौड़े रहीते तथापि नित्यानंद प्रेमे चलिला देखिते। Sri Chaitanya Mahaprabhu had ordered Lord Nityananda to stay in Bengal, but
Nevertheless, because of ecstatic love, Lord Nityananda also went to see him. Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Nityananda, no need to every year to come in Jagannath Puri. You have to stay in Navadvip Dham, Bengal Pesali, and give some mercy to them. Because Chaitanya Mahaprabhu has so much love and affection with the residents of Navadvip. This is the nature. Krishna, he has love and affection with the residents of Vrindavan, Brajavasi. In the same way, Lord Jagannath, he has love and affection with the devotees of Nilachal Vasi. Actually, so maybe you know why Lord he is making discrimination. Lord is one. But why did he discrimination? His Brajavasi, his Navadvip Vasi, his which Vasi? Puri Vasi, not Nilachal Vasi. Actually, this is called the human being Lila, Manav Lila. In human being Lila, one who takes birth in that the place, automatically he has attachment, love and affection with that the devotees. So Chaitanya Mahaprabhu, ये माइक चल रहा है, बता. So Chaitanya Mahaprabhu, he has so much love and affection with the residents of Navadvip. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told Nityananda, always stay in where? Navadvip Dham. Actually, all the residents of Navadvip, they are feeling pang of separation from Chaitanya Mahaprabhu. So if Nityananda Prabhu would stay in Navadvip Dham, that time he can give some, what do you call it? Pacify. This is the Anurage, but Nityananda Prabhu, he can't to stay, he does not want to stay in Navadvip Dham. Why? Because he wants to stay with Lord Chaitanya Mahaprabhu. यद्यपि प्रभु आज्ञा गौड़ रहिते तथापि नित्यानंद प्रेमे चलीला देखते. नित्यानंद प्रेम so much love and affection with Lord Chaitanya Mahaprabhu. अनुरागे रे लक्षण विधि नहीं माने तारका भांगे तार संगेर कारणे. Indeed, it is symptoms of real affection that one breaks the order of supreme personality of Godhead, not caring for the regulative principles to associate with him. Give an example. When Krishna played the flute, then the all gopis, they left their household duties and they arrived Rasasthali. Rasasthali? At the Rasasthali. Bangsibad. Bangsibad. Then Krishna, he joked with the gopis. Sagatam bho mahabhaga. First Krishna, very nice, sweet words will come to the gopis. Sagatam bho mahabhaga. Oh gopis, you are very fortunate. Welcome also you. Come. Then Krishna used this word. Hey gopis, you should return back your home. Because now it's night time. And deep night. Late night also. And all your ladies are I am Pakka Brahmachari.
One man. So you should not stay here. Because scriptures also explain matra dvita very slow. श्लोक पता है? मात्रा द्विता सुधा नाभि विभूषणा तो वसित बलवान इंद्रियो ग्रामं विद्यां अपि संकर्षयते. मात्रा द्विता. You should not alone stay with your mother. Matra. Duhita and Kanna. Not stay with your sister and your daughter. Because Balavana Indra Grama Vidyang Pi Sankarsayate. Even those who are very confident person also control their mind, but if you stay alone, maybe your mind will be disturbed. So in the same way Krishna told to the gopis, I am brahmachari, and you are very nice people, tender-aged young girl. So if you stay here, maybe my mind will be disturbed. So go, return back to home. And you are married lady, this is your dharma, nature. You have to serve your husband. Pati seva karo, serve your husband. Even your husband not good person. Good person means if your husband use many harsh words, but chaste lady should be worship his husband. And Krishna very nicely gave instruction to the gopis. Many instructions there. But gopis, they gave very nice instruction to also Krishna. One is called Pati, one is called Parampati. One is called husband. The husband, that is your relationship only with this technique. Or sometimes working. One is called Pati, another is called Parampati. The relationship with our this body, with our husband, only temporary. Just when you are living in this body. When you change this body, there is no relationship with our husband. And Parampati Parameswar Bhagavan, that relationship is what? Eternity and transcendental. So one is called Pati or one is called Parampati. So Govind they told, you are called Parampati. So all the scriptures explain everybody should serve Parampati Parameswar Bhagavan. So many kinds of the discussion with gopis and Krishna. For this regard, gopis, they did not return back their home. So here also Krishnadas Kaviraj Goswami explained, Rasa jiche ghar jaite gopiragga dila, taragga mangitar sange se rohila. During the rush dance, Krishna asked all the gopis to return home. But they neglected his order and stayed there for his association. Akka parane Krishna jaicha paritos, preme ragga bhangile hoy koti sukha pos. If one carries out Krishna's order, Krishna is certainly pleased. But if one sometimes breaks his order due to the ecstatic love,
that gives him millions times of and greater happiness. Yes? When Jagik Patni, the wives of the Brahmanas, when you are used to go bathroom, and that time that the wives of the Jagik Brahmanas, they also met with Krishna, and Krishna also used same words of the gopis. Krishna told to the wives of the Brahmanas, hey, you are young ladies, so you should return back your home. Pati sevai param dharma. Your duty to serve your husband. But that time, the Jagik Patnis, they returned back their home. But gopis, they did not return back to home. Why? बताओ. कृष्ण गोपियों की कहा कि तुम लोग घर लौट करके जाओ, अपने पति की सेवा करो. और वही कथा कृष्ण जागृत पत्नी के भी बोली, अपने घर में जाकर के पति की सेवा करो. जागृत पत्नी लोग ब्राह्मणी, वो लोग घर लौट करके गए, गोपियां घर लौट करके नहीं गई. क्यों? क्यों गए? जागी पत्नी लोग चली गई और गोपियां क्यों नहीं गई? दिमाग में है कुछ? बताओ. कृष्ण एक अचिंत विचार है. कृष्ण हैज इनकॉन्सिबल कंसेप्शन इन हिज हार्ट. कृष्ण गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार. अकॉर्डिंग टू द वर्णाश्रम धर्म एंड ह्यूमन बीइंग pastimes, Krishna in his lila he belongs to Gopa dynasty, Gop jati. So his rules and regulations only he accepts those who are belongs to Gopa. Krishna Gop jati gopi bina अन्य ना करे अंगीकार. Very clearly explained in this part Krishnadas Kaviraj. Krishna Gopa jati, gopi bina ना करे अंगीकार. Without gopi form, Krishna will not accept it. Our Brahman is there, higher caste. According to the rules and regulation of the scriptures, Manusmriti, Manusamhita, everybody should be marriage ceremony with his own caste. सभी विवाह कैसे होती है? अपने कास्ट में होना चाहिए. ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ विवाह करे, शूद्र शूद्र के साथ विवाह करे. According to the rules and regulation of Manusmrita or Manusmriti, the social etiquette and marriage ceremony should be their own caste. But one thing, Brahman can marry with the lower caste, but lower caste person, male person cannot marry with the higher caste. This is another rules coming. ब्राह्मण निज जाति को विवाह कर सकते हैं. ब्राह्मण छोड़ करके अन्य किसी जाति को विवाह कर सकते हैं. अरे ब्राह्मण पर्सन, ब्राह्मण मेल पर्सन.
आया समझ? किंतु जैसे क्षत्रिय पर्सन माने मेल पर्सन कैन नॉट मैरी विथ ब्राह्मण गर्ल. दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मनुष्य. अरे हरी कथा सुनता नहीं है कोटेशन दिए. अच्छा 2 मिनट आगे. इसलिए कह रहे कृष्ण गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार. गोपी बनना ही पड़ेगा. यदि कृष्ण के सेवा करना हो तो क्या बनना पड़ेगा? गोपी बनना पड़ेगा. इफ यू वांट टू सर्व कृष्ण यू हैव टू बिकम गोपी. गोपी बनना पड़ेगा. लक्ष्मी के भगवान ने स्वीकार नहीं किया. एक्चुअली ब्राह्मणी अभिमान जब तक गोप अभिमान नहीं, गोपी अभिमान नहीं हो तब तक कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे. इसलिए कहते हैं इसको आप समझो. कृष्ण गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार. स्पष्टीकरण कर समझ में आ रही है? क्या बोला? गोपी ही बनना पड़ेगा तुझे. इसलिए क्या बोलते हैं आत्मशुद्धि में क्या होता है? भूत शुद्धि में है ना. गोपी भूत क्या बोलते हैं? ना हम विप्रो न च नरपति न वैश्य न शूद्र गृहस्थ किंतु पद्मोलिखनम परमानंद पूर्ण मिताब्दे गोपी भर्तुर पद कमलोर दास दास. गोपी भर्तु गोपियों की जो प्राण प्रियतम कृष्ण है उनकी दास अभिमान रखना पड़ेगा. दासी अभिमान रखना पड़ेगा. है यदि कृष्ण के भजन करना है तो ये भावना रखना पड़ेगा. मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र. मैं क्यों? गोपी भर्तुर पद कमल और दासानुदास. दासानुदास व दासान ये भावना रखना है. यही विशेषता है. आज्ञा पालने कृष्णे जैसे परितोष प्रेम आज्ञा भांगले है कोटि सुख पोष. If one carries out Krishna's order, Krishna is certainly pleased. But if one sometimes breaks his order due to his ecstasy love, that gives him millions times of greater happiness. किंतु प्रेम यदि नहीं हो और नियम के उल्लंघन किया, आदेश के उल्लंघन किया, उसमें दोष हो जाता है. प्रेम होना चाहिए. है? प्रेम जब तक नहीं हो तो नियम के उल्लंघन करना नहीं चाहिए. प्रेम हो जाए, प्रेम ही अपने आप मर्यादा को वो कर लेते हैं और उसमें कृष्ण के प्रति होता है, प्रसन्न होता है. प्रेम होने से प्रेम की शब्द भी आनंद होता है. पत्नी पति के कभी कभी उल्टी सीधी बात कर देते हैं, वो प्रेम के द्वारा. पति भी पत्नी को भी उल्टी सीधी बात कर देते हैं, क्यों? वो प्रेम है, प्रेम की बात है. और प्रेम नहीं हो जिसके तुझको ऐसे शब्द बोल दो तो गड़बड़ हो जाए. गड़बड़ समझते हो? आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए प्रेम होना चाहिए. जब तक प्रेम नहीं हो तब तक मर्यादा रख करके चलना पड़ता है. किंतु ये प्रेम की जो परिभाषा देते हैं ये केवल गोलोक वृंदावन की प्रेम के बारे में आता है. वैकुंठ अयोध्या द्वारका आदि में प्रेम में नियम और विधि के ही लेकर ही चलते हैं. वहीं पर लक्ष्मी देवी को भी नारायण की उल्टी सीधी बात नहीं कहेगी, सीता देवी भी नहीं कहेगी, क्योंकि उसमें मर्यादा है. सीता देवी
कभी रामचंद्र की जो है नहीं, उल्टी सीधी बात नहीं कही है। किंतु वृंदावन में गोपियां कृष्ण के क्या चोर बोलता है, लंपट बोलता है। अरे इतने समय राम ने क्या सुना तुमने? 7 खंड रामायण पढ़े, सीता की। अरे प्रेम मर्यादा बोला ना, विधि मार्ग। क्या सुना तुमने? सुना ही नहीं। चिंता कर रहे हो वृंदावन का। क्या बोला क्या बताओ? अरे रामचंद्र सीता में प्रेम है, किंतु वो प्रेम मर्यादा के द्वारा बंधा हुआ है। बोला कि नहीं बोला? ये जो वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा आदि ये सब प्रेम क्या? विधि मार्ग के द्वारा बंधे हुए हैं। मर्यादा समझ तो, मर्यादा के द्वारा बंधे हुए हैं। इसलिए वे लोग उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे। रामचंद्र के नहीं कहेंगे तुम लंपट हो, चोर हो, झूठ हो, ऐसी बात नहीं कहेंगे। ना लक्ष्मी देवी नहीं कहेंगे। किंतु गोपियां आराम से कहते चोर हो, लंपट हो। गोपियां कभी कृष्ण के प्रणाम नहीं करेंगी। कृष्ण प्रणाम करे गोपियों की कभी, किंतु गोपियां कृष्ण को भी प्रणाम नहीं करेंगी। किंतु सीता देवी रामचंद्र के प्रणाम करती है कि नहीं करती? प्रणाम करती, मर्यादा लेकर के चलते हैं। उनके ऊपर संभ्रम भाव रखते, संभ्रम मर्यादा, जिसमें हित कंपन कहा जाता है। ये बड़े हैं, मैं छोटा हूं, ये भाव रखता है। वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा के संबंध जो है उसी प्रकार मर्यादा और विधि के द्वारा समझ में आ रहा है। ये किंतु ये विधि मर्यादा की तारतम्य भी बताया गया। जैसे वैकुंठ में अधिक विधि मर्यादा है, उससे कम विधि मर्यादा किस में है? अयोध्या में भी। और उससे कम विधि मर्यादा किस में है? क्या बोले? द्वारकापुरी में है। द्वारकापुरी वहीं पर रुक्मिणी सत्यभामा को भी कोई मान भी कर लेती है, वहीं पर मान की कथा सुनाई जाती है। किंतु सीता देवी के मान के बारे में कहीं सुना नहीं गया। अथवा लक्ष्मी देवी के मान कर भी ये भी सुना नहीं जाता, कहीं शास्त्र में ऐसे मिलता नहीं है। पति पत्नी के भाव है, लक्ष्मी और नारायण के पति पत्नी भाव तो है, किंतु मान की बात नहीं आता है। सीता देवी के मान के बारे में कोई विशेष ऐसे उल्लेख नहीं है। किंतु रुक्मिणी सत्यभामा की मान की बात कहा है, उसकी मर्यादा तो है, किंतु मर्यादा सीमित है, ऐसा ये। और गोलोक वृंदावन में गोपियों की तो मर्यादा एक है, वो प्रेम की मर्यादा के द्वारा बनी है। प्रेम की मर्यादा वहीं पर है। जैसे कहा जाता है, जैसे समुद्र भी अपने मर्यादा लेकर के चलते हैं। विशाल समुद्र, बड़े बड़े लहरियां आती है और तटदेश के टच द बीच, और वो तटदेश के स्पर्श करके वो चली जाती है। किंतु जब आप क्या बोले आंधी तूफान हो, वो समुद्र की लहरियां क्या होता है, मर्यादा लांग करके भी चली जाती है। तटदेश के ऊपर उछाल करके आगे आ जाती है। तात्पर्य क्या है? नहीं, ब्रज की प्रेम की एक मर्यादा, प्रेम भी अपने एक मर्यादा रखती है। ये नहीं कहा कि प्रेम की मर्यादा नहीं है, प्रेम की मर्यादा उसी पर है। किंतु प्रेम के जहां पर ऐसे घनीभूत विवर्तक आ जाता है, घूर्णायमान आ जाता है, तो अब उस समय प्रेम वो मर्यादा की भी लंघ के चले जाते हैं। साधारण दशा में गोपियां कृष्ण के ऐसे चोर चट्टा ऐसे नहीं बोलते, हंसी मजाक के प्रेम की जहां पर मन की दशा हो जाते हैं तब वो बोलते हैं। उसके प्रणय रोष कहा जाता है। क्या बोला? प्रणय रोष कहा जाता है। इसलिए हमारे आचार्य पाद ने कहा, एक होता है प्रणय, एक होता है प्रणय रोष।
रुक्मिणी आदि सप्तभम में वास्तव रूप में प्रणय रोष नहीं है, उसके प्रणय रोष के आभास का है। और राधा आदि गोपियों में पूर्ण मात्रा में प्रणय रोष रहता है? प्रणय माने अभिन्न हृदयत्म जहां होता है तहां तो प्रणय होता है। तुम्हारे जो तव हृदय मम हृदय, शादी किया कि नहीं? शादी में क्या होता है? शादी में उस समय प्रणय सूत्र बंधन लिखा रहता है ना। क्या लिखा रहता है? प्रणय सूत्र। तो क्या पढ़ा तुमने? प्रणय सूत्र बांग्ला में हिंदी में सब एक ही शब्द है, प्रणय सूत्र बंधन, विवाह बंधन, प्रणय सूत्र बंधन, लेकिन प्रणय भोज, विवाह भोज लिखा रहता है ना। प्रणय सूत्र होता है माने पति पत्नी के एक हृदय जहां पर माना है, तब हृदय मम हृदय, मम हृदय तब हृदय। तुम्हारे हृदय हमारे हृदय में कोई भेद नहीं होता है, उसी के कहता है प्रणय कहा जाता है। आज से तुम्हारे साथ विवाह होगी, मैं तुम्हारे हूं और तुम मेरे हो। आई बिलोंग्स टू यू, आर बिलोंग्स टू मी। ये होता है तुम्हारे साथ हमारी कोई दो शरीर और एक हृदय माना जाता है, उसी कहता है प्रणय बंधन कहा जाता है? और प्रणय रोष जहां पर अपने भाव के अभिव्यक्ति करते हैं, जहां पर प्रेम इसी प्रेम जब और घनीभूत हो जाता है उसमें मान रूप में प्रकट होता है। प्रेम घनीभूत होकर के एज लाइक मिल्क, जब दूध क्या हो जाता है, गर्म करते करते वो घनीभूत हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और उसके जितने भी और भी बॉइल करते रहोगे वो कंडीशन के वो राबड़ी मलाई बनता रहते ना है? राबड़ी मलाई खाया कि नहीं? राबड़ी मलाई और भी टेस्ट होता है, मिल्क तो टेस्ट होता ही है, किंतु वही मिल्क के जब हम बॉइलिंग करते रहते हैं तो स्वाद टेस्ट अलग बनता रहता है? राबड़ी बन जाता है, पहले मलाई बनता है, सर पड़ता है ना मलाई, इसके बाद फिर क्या बनता है? राबड़ी बन देते हैं, और भी होता है। इसके आगे जाकर के अनेकों प्रकार से मिल्क प्रोडक्ट्स और भी सुस्वादु होता है। जितने भी उसके माने कंडेंस होते जाएगा, ठीक उसी प्रकार स्नेह प्रेम बढ़ करके स्नेह हो जाता है। स्नेह में क्या होता है? चित्त द्रावकता इति स्नेह, चित्त द्रवीभूत हो जाना है? अपने प्रियजन के दर्शन करके हृदय द्रवीभूत हो गया। द्रवीभूत के क्या है? मेल्टेड, योर हार्ट मेल्टेड। इसका तात्पर्य क्या होता है? आंखों से आंसू आ जाता है। अपने प्रियजन के बहुत दिन के बाद अपने प्रियजन के देख करके हृदय द्रवीभूत हो गया। इसके लक्षण क्या है? चित्त द्रवीभूत हो जाना है, इसमें कहा जाता है स्नेह। स्नेह चित्त द्रावकता, चित्त द्रवीभूत हो जाना इसके स्नेह कहा जाता है। द्रवीभूत कैसे लक्षण क्या है? आंखों से आंसू आ जाए, गदगद वचन हो जाता है, होंठ आदि फफड़ने लगने, गदगद वचन, थ्रोट कंप्लीट यू आर चोक्ड, वो ये सब स्नेह के लक्षण। वही स्नेह और जब कंडेंस हो जाता है, घनीभूत हो जाता है, वो स्नेह आकर के कभी प्रणय कभी मान के रूप धारण करते हैं। प्रणय क्या है? एकत्व बुद्धि, देह मन जब एकत्व बुद्धि होता है तब उसे कहा जाता है प्रणय होता है। तुम्हारे शरीर तुम्हारे मन के साथ हमारी कोई भेद नहीं है, ऐसा। और यही प्रणय आगे जाकर के क्या होता है? कुछ मान रूप में धारण कर लेते हैं, वर्लपुल हो जाता है, घूर्णावर्त हो जाता है। प्रेम की घूर्णावर्त वर्लपुल होता है। प्रेम की घूर्णावर्त होकर के एक सुंदर और भी एक रूप धारण कर उसके मान कहा जाता है। उस मान में अनेक प्रकार शब्द निकालते रहते हैं और उल्टी वचन होता है, हाँ के ना, ना के हाँ जो होता है।
क्या बोलते हैं, हाँ के ना, ना के हाँ, यस नो, नो यस हो जाता है, और उल्टा होता है उस समय। ये प्रेम नहीं, ये समस्त विचार उज्जवल बने। और भी सुंदर रूप में कितने प्रकार के मान होते हैं, ललित मान होता है, अनेक प्रकार के मान, ये समस्त मान के विचार सुंदर रूप में सुनिए। और उसी समय होता है, उसे कहा जाता है प्रणय कोप होता है, गुस्सा आता है। हाँ, कोई मान ही एक सौंदर्य धारण करते हैं तो उसमें आकर के गुस्सा आ जाता है, क्रोध प्रकाश करते हैं। जैसे पति भी पति को ऐसे गुस्सा गुलची चलाते हैं, वो पिट उसके शासन नहीं करते, उसके प्रेम में ऐसे धारण करता रहता है, उल्टी सीधी भी बोलते हैं, तो बोलते रहते हैं, चोर लंपट आदि है। उस समय वो मधुर शब्द निकालता है। ये है प्रणय रोष होता है। प्रणय होने से एंगार क्रोध आ जाता है? बहुत आनंद होता है उसमें। उसी प्रणय रोष के सुनने के लिए कृष्णा भ्रमर के रूप में राधा जी के पास आए हैं, उसी कथा को सुनने के लिए। ये जो भ्रमर कौन था? भ्रमर वास्तव रूप में कोई कृष्ण ही था। उसी कथा को कृष्ण मानो भ्रमर के रूप में सुनने के लिए। आज याद रखना, गोवर्धन जाने को भ्रमर गीत मुझे लाना पड़ेगा, तो भूल जाऊंगा, 3 पैकेट लाना पड़ेगा। प्रणय रोष कहा जाता है, उस उसी कथा है। क्या श्लोक है? पहले श्लोक, मधुप किप बंधु मां विश्रांगी है। राधा जी कितने कर रहे? मधुपो कितब बंधु, हे मधुपान करने वाले भ्रमर, तुम तो छल कपट के मित्र हो। है कितब माने छल कपट, दुष्ट है, हिपोक्रेट है, डुप्लीकेट एंड डुप्लिसिटी एंड हिपोक्रेसी। किताब बंधु, छल कपट के तो मित्र हो, कि तुम्हारे साथ और कृष्ण के साथ सब एक ही व्यवहार और रंग एक ही है। योर कॉम्प्लेक्शन कृष्ण कॉम्प्लेक्शन सेम, योर एक्टिविटीज एंड कृष्ण एक्टिविटीज आर सेम। फॉर दिस रिगार्ड कृष्ण सेज दिस, श्रीमती राधिका शी सेइंग दिस वर्ड, कितब बंधु मधुपो कितब बंधु मां विश्रांगी। मेरे चरण की तुम स्पर्श मत करो, जाओ यहीं से हट जा, मेरे चरण के स्पर्श मत करो। है तुम भ्रमर जाति, यदि कहते मैं तो भ्रमर जाति हूं, है भ्रमर जाति तो और भी दुष्ट है। भ्रमर को भी एक फूल में बैठता नहीं है, एक फूल छोड़ के दूसरे फूल। और कभी कभी भ्रमर मधु संग्रह ही नहीं करता है, ऊपर में जाकर बुझ 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 करके चले जाते हैं। तो तुम्हारे मित्र कृष्ण उसी प्रकार ही है, वो छल कपट है, दुष्ट है। ठीक है, मधु को कितो बंधु मां विश्रांगी। दूसरी क्या है? तुम शराब पी कर क्या है, इसलिए तुम्हारे सिर घूम रहा है। जब भ्रमर जब उड़ता है ना, जब देखना उनके सिर ऐसे घूमता है। कभी भ्रमर पकड़ा कि नहीं? हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे याद है, हम लोगों की एक खेती होता था, सन जानते हो? सन सनफ्लावर नहीं, बंगला सन बोले। सन माने ये जैसे जूट है ना, और उससे भी शक्ति होता है, वो सन एक होता है। उससे जो फल होता है, फूल होता है ना, उसमें ज्यादा वो ये होता है शायद। हाँ भी चलता है उसी वो, उसमें जो है वन टाइप्स ऑफ जूट। जूट समझते हो? नहीं समझा? अरे सैक्स जो बनता है, बस्ता जो बनता है ना, जूट। जूट किसको बोलते हैं? जूट जानते नहीं है, क्या बोले? क्या बोले इन लोग?
The cat harvest it, then have to put in the water, then it rotten, then bark will come, that is due. अरे ये जो बस्ता बनता है, बोरी, ये बोरी में बोरी जो बनता है ना, ये क्या है? ये जूट से आता है। अरे यार पोटेटो बैग करने से आजकल तो वो जूट नहीं बनता है? हाँ। तो उसके जो फूल होता है उसमें जो भ्रमराग्र बैठते थे, उसके बहुत ये होता है, उसके गंगा हम लोग छोटे थे ना, भ्रमर कैसे पकड़ करके वो ये माचिस है ना, दिया सलाई जो है इसमें भर देते थे, हैं? ऐसे भर देते, इसके अंदर रह करके वो शब्द करता था, माने वो कान में लगा देते हैं। उसके ये आजकल ये दिया सलाई तो छोटा हो गया ना, बंगाल में ऐसे बड़ा होता है, हैं? नहीं, इसके धोने के तरीका है ना, काटे के काट भी देता है, तो वो भी देता है। उसके अंदर में रखो, ऐसे करो, वो बुझ करेगा, सुनने में आनंद लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं मधुपो कितुब बंधो माँ विश्रांगी, काल इसी कथा बोलेंगे। बोलो वृंदावन की जय 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 श्री राम। चलो, we will go Radhakunda. First go Radhakunda, then return back to Viraj Govardhan temple and take breakfast there. Good, Viman. चलो, we will go. सभी लोग चलो गाड़ी में बैठ जाओ, और उधर से न्यू बस स्टैंड से मिल जाएगा सर, हैं? Go here to go new bus stand, then go take bus, then go. No, Radhakunda bus is not going. Govardhan. Okay, चलो, बोलो वृंदावन बिहार मिलान। अरे आपके बस में, आपके गाड़ी में कितना जगह है, सीट है? 2 है।